सर आप अभी किस फॉर्मूला की बात कर रहे थे? कैन यू टेल मी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q is equals to mc delta T, जो हमने कंडक्शन से भी पहले चैप्टर 2 में डिस्कस किया था। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो उसे रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगा, अदरवाइज नो इशू। आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सेक्शन, डेफिनेटली वी विल डू अ रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी स्टडीड इन थर्मल फिजिक्स, बिकॉज वी नीड टू प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स क्वेश्चन एज मच एज वी कैन। सो अगर आपका वो मिस हुआ था तो आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग से उसका रेफरेंस ले लेना, अदरवाइज रिवीजन में आपको उसका कंप्लीट आइडिया फिर से मिल जाएगा। सर आई विल चेक ऑन रिकॉर्डिंग। ओके। ओके, सो टुडे वी Sir, विल, यस। I just want to ask and confirm that we'll be giving our O levels paper in 2026 of physics. Yes. Okay. And sir, after this, once we are done with the thermal physics, we'll be doing space physics or the nuclear physics. First we will do nuclear physics, then space physics, because in space Okay. physics, some concepts are linked with the nuclear physics. So we need to know about nuclear physics, then it will be easy to study space physics. Okay, sir. Thank you. Okay, so in this section of thermal, last time we discussed the example and the concept of convection. I also shared some examples, description of the examples in the group, right? So definitely you go through them and you will get the same idea that we discussed in our last class related to the refrigerator, related to the AC and the heater, that why we use these things in our daily life in such a way. So that is the important thing. And today we are going to start with the third mode of heat transfer, which is called radiation. And this is your last topic of thermal physics, like the last topic of chapter number 3, also the last topic of your thermal physics section, because in new syllabus, many topics are excluded now. So this thermal physics section also becomes very short. So रेडिएशन ये आपका लास्ट टॉपिक होगा थर्मल फिजिक्स और चैप्टर नंबर 3 का भी। उसके बाद फिर ये कि हम रिव्यू कर लेंगे क्वेश्चंस को, और अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम उन टॉपिक्स को रिवीजन क्लासेस में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। सो बेसिकली radiation is completely different from conduction and convection. As you know, conduction is especially for metals and solids, and convection is especially for liquid and gases. And by name radiation, we all know, आपने कहीं ना कहीं रेडिएशन का वर्ड सुना ही होता है। ठीक है। अदरवाइज कुछ साइंटिफिक वीडियोस, कुछ साइंटिफिक क्लिप्स में आपने रेडिएशन को सुना और देखा होता है कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं रेडिएशंस को। सो what is the meaning of radiation and how heat can be transferred with the help of radiation? Because right now we are only talking about thermal properties, so our main concern is only with the temperature, the heat. We are not talking about any other type of radiation right now. So basically, radiation is a mode of heat transfer. It is a mode of heat transfer with the help of infrared radiations. अच्छा, इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में अभी राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर इंफ्रारेड रेडिएशंस एक्चुअली, बट जस्ट फॉर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आप इंफ्रारेड रेडिएशंस को, क्योंकि ये लाइट वेव सेक्शन में इसकी कंप्लीट डिटेल है, ठीक है, तो ये हम वहाँ करेंगे डिस्कस। बट राइट नाउ फॉर दिस चैप्टर इंफ्रारेड रेडिएशन की डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा थर्मल में। ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, दैट वाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशंस, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो कैटेगरी है रेडिएशन की,
This actually takes place like when there is a body with high temperature or hot bodies. तो जब hot bodies में से radiations emit होती हैं, so those radiations are called infrared radiations, just like the example of the sun, right? So you know sun is also considered as a ball of fire, so definitely temperature is also very high, and we are also getting sunlight, heat energy, and also radiation from the sun, right? And now we are now we are talking about radiation, and now we are talking about sun. So you also know कि sun और अर्थ के बीच में स्पेस है, एक वैक्यूम है. There is no source of like heat transfer or any type of transfer between sun and earth, क्योंकि वैक्यूम में ना एयर पार्टिकल्स हैं, so definitely there is no concept of vibration of molecules, right? प्रीवियस 2 मॉड्स में आपने मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को स्पेसिफिक मेंशन किया था. तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सन, इट मींस देयर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ. सो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन about the vibration of the molecules in radiations, right? So this is the important thing, that we can transfer heat with the help of infrared radiation, and it does not require any medium. Medium. It can travel in vacuum. अच्छा, वैक्यूम का आप सबको आइडिया होगा दैट वैक्यूम मींस व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर, राइट? सो जब आपके पास कोई एटमॉस्फेयर ना हो, सो दैट इज कॉल्ड वैक्यूम. इफ वी कंपेयर the earth atmosphere, so in our earth atmosphere we know there are air particles present, there are so many gases present in our atmosphere. But if we are talking about vacuum, so it means zero atmosphere, no atmosphere. So it means no gases, no air particles, no other types of particles are available. So definitely यहाँ पर vibration का concept तो apply नहीं होगा, right? So this is the concept of radiation. So basically, we are going to talk about the type of heat transfer without any help of the source or without any help of the vibration of the molecules. जिस तरह से हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, सो वायरलेस कम्युनिकेशन में आपको मतलब फिजिकली कोई कनेक्शन नजर नहीं आता. लाइक व्हेन यू आर कनेक्टिंग ब्लूटूथ और लाइक वाईफाई, सो यू नो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, but still with the help of waves we can connect them. So in the same way radiations can transfer, but we are not able to like physically observe them with our normal eye, but still there is a heat transfer takes place with the help of radiation. और रेडिएशन में कुछ इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पर हो. सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन वेरी मच डेप्थ फॉर दिस टॉपिक, बट द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इज रिलेटेड टू द फैक्टर्स, राइट? लाइक रेडिएशंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं टू लाइक increase the rate of heat transfer with the help of radiation, or to decrease the rate of heat transfer uh, with the help of radiations. So directly we are going to discuss about those factors. कंडक्शन में आपने देखा मेटल की एक स्पेशल कैटेगरी थी, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ का बहुत बेसिक यूज है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दैट टॉपिक इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. बट रेडिएशन में हमारी डेली लाइफ में एज सच कोई इतना मतलब हम इन डेप्थ नहीं जाते. लाइक वी आर यूजिंग एक्सरेज, एक्सरेज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडिएशंस, बट स्टिल वी डोंट नो हाउ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड, और इन डेली लाइफ हम ये डिस्कस ही नहीं करते हैं, ठीक है? बस हमें ये पता होता है कि एक्सरेज जो है वो हमें बोन्स फ्रैक्चर्स जो है वो आइडेंटिफाई करके देता है. इससे ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में नॉर्मल पर्सन के लिए कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है? तो अभी बेसिक लेवल पर
सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता, ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए बेसिक, फिर आप उसको एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हो. सो द फर्स्ट फैक्टर दैट इज लिंक विद द रेडिएशन इज कलर. अच्छा, ये फैक्टर बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग सा है. आपने देखा होगा कि लाइक इन विंटर सीजन वी यूज टू वेयर जैकेट्स नॉर्मली ऑफ डार्क कलर्स. अच्छा, आजकल तो ये है कि हम थोड़ा सा मतलब फैशन और इन चीज़ों को इतना वो कर रहे हैं, तो कलरफुल हुडीज और ये सब अवेलेबल होती हैं. लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले जाओ, लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स के टाइम को देखो, तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता था. उसमें मोस्टली यू नो दैट देयर आर ब्लैक जैकेट्स, ब्राउन जैकेट्स, or like green or dark blue jackets. So these are the common colors, and mostly they use leather or fur jackets in that time. ठीक है, उस टाइम हुडीज और इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो एक अलग चीज़ है. बट बेसिक्स हमारी सेम रहेगी, राइट. तो विंटर सीजन में वाई वी यूज लाइक और लेदर जैकेट्स हमेशा डार्क कलर में इतनी क्यों बनाई जा रही होती हैं, ब्लैक और ब्राउन, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, and what is the importance of color, like if we are using white color and black color, so what is the difference between those two color and how these two colors can affect the rate of radiation, right. तो ये एक important और interesting चीज़ है आपके पास. तो कुछ आप फीडबैक देना चाहोगे पहले कि आप इस आइडिया को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में मतलब देखते हो, या आपको इस बारे में जो भी नॉलेज है आप शेयर करना चाहो रिलेटेड टू द कलर. लाइक नॉर्मली गर्मियों में आपने सुना होगा कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि आप जो है वो लाइट कलर के कपड़े पहनो. ठीक है, लाइक मोस्टली यू नो पीपल यूज टू वेयर वाइट कलर और येलो और लाइक दिस टाइप ऑफ कलर्स इन समर सीजन, और विंटर में हम मोस्टली डार्क कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं. विंटर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन समर में जो है वो डार्क कलर, जिस तरह अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो, लाइक इट वाज अराउंड 27 और 30 डिग्री सेल्सियस, सो अगर कोई ब्लैक पहनकर दोपहर में बाहर जा रहा हो, तो डेफिनेटली that person feels very hot in the atmosphere. So reason is very simple when we are talking about colors, right. So generally the basic difference between dark and bright color is that dark colors are good absorbers. कोई और एग्जांपल जो आपके माइंड में आ रही हो कलर से रिलेटेड? But why said dark color are good conductor? Good absorbers, okay, I will let you know. And good emitter. अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन है ना कि डार्क कलर्स जो है वो क्यों गुड कंडक्टर्स या गुड एब्जॉर्बर्स में आ रहे हैं. अच्छा, इसके लिए ना आपको थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी. ठीक है, मतलब मैं आपको एक वन लाइन आंसर में तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा राइट नाउ, क्योंकि अभी हमने वेव्स के बारे में बेसिक्स नहीं पढ़ी. ठीक है, और हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल है भी नहीं. वो आपसे ये पूछेंगे नहीं कि वाई डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर, क्योंकि उन्हें पता है भी इस लेवल पे ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा. सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ. लाइक इफ यू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ रेनबो कलर, राइट. सो इन रेनबो कलर, if you know the sequence of the rainbow color, what is the sequence of the rainbow color? Red, orange, yellow, green, Yes. blue, indigo, violet. तो बेसिकली ये रेनबो कलर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में वेव सेक्शन में इंक्लूडेड है. सो आप ये सीक्वेंस यूज करते हो, वेव प्योर करके कोई ना याद कर लेता है, या No, sir. वेव. If we do it according to the secret, it would be Roy G. Biv. Like, ठीक है, तो अब मुझे इस तरह से इजीली याद रहता है तो मैं लिखता इस तरह से, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली हमें दोनों एंड के कलर्स की होनी चाहिए. So basically, if you compare red and violet color, right? So red seems darker than violet, right? और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, अब ये वेवलेंथ और ये सारी टर्म्स ना आप वेव्स में पढ़ोगे. ठीक है, तो उनकी जो sir, जी, nothing, sir. ओके. सो बेसिकली इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज का जो है वो आपको कॉम्बिनेशंस देखना होता है. लाइक इन वायलेट कलर वी हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एंड इन रेड कलर द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द रेनबो कलर. और वॉयलेट के बाद अगर आप आगे जाते हो
तो उसके बाद आपको मिलता है एक्स रेज और गैमा रेज। राइट, गैमा रेज आपको पता है न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, तो जिनकी फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं, तो ब्लैक कलर को, डार्क कलर को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर जो है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट इजीली कर पाती हैं। राइट, सो दैट्स व्हाई इन डार्क कलर्स they are good absorbers and good emitter. They can absorb heat, they can absorb like radiations more as compared to the light colors. और इसकी एग्जांपल ये है कि आप नॉर्मली जो किचन में जो कंटेनर्स हमारे पास यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, सो मोस्टली लाइक इफ यू टेक एग्जांपल अगेन द फ्राई पैन एग्जांपल, सो मोस्टली वो आपने देखा डार्क कलर्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, नॉर्मली. So the reason is same because they can quickly absorb radiation and thermal energy, and they can also emit out. Emit out means to move those radiation out of the body, right? ठीक है, एक होता है कलेक्ट करना, फिर एक होता है आप किसी को रिसीव करवाते हो. तो जब आप कलेक्ट कर रहे हो, सो बेसिकली दैट इज एब्जॉर्प्शन, और जब आप किसी को डिलीवर कर रहे हो, सो दैट मीन्स एमिटर, राइट, एमिशन. So this is the concept that dark colors are good absorbers and good emitter. And if we compare with light colors, so light colors are bad absorbers and bad emitter. But light colors are good reflectors. If we compare with light colors, good reflectors and bad absorbers. अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हम कार में भी रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं ताकि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट हिट ना करे हमें, क्योंकि आई साइट जो है वो ड्राइविंग में हमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है. तो उस चीज़ के लिए भी आपने देखा होगा जो रिफ्लेक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी सिल्वर कलर्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है. और सिल्वर कलर से ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं उन्हें, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं करते, बिकॉज इफ दे एब्जॉर्ब सो डेफिनेटली दे विल एमिट. तो फिर उस रिफ्लेक्टर का हमें जो है वो कोई एडवांटेज नहीं होगा. तो डेफिनेटली लाइक इफ यू कंसिडर कि हमारी अगर एक बिल्डिंग है एंड दैट बिल्डिंग इज कम्प्लीटली पेंटेड वाइट फ्रॉम आउटसाइड, right, and the temperature is around 30 degrees Celsius in daytime in summer season, so definitely that building will not absorb radiation because white color is a bright color or light color, so that is a good reflector. So वो radiation को reflect back करवा देगी, ठीक है, रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी बिल्डिंग को बट वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. तो इससे क्या होगा कि बिल्डिंग का इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन रहेगा. बट लेट सपोज सेम बिल्डिंग को आप ब्लैक कर दो, राइट, सो इन डे टाइम व्हाट हैपेंस कि जो रेडिएशंस और थर्मल एनर्जी होगी वो उन्हें मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेंगी, और जब वो उन्हें एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा कि अंदर का जो टेम्परेचर होगा ना वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाएगा. ये बाहर से रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन हो रही है, राइट. एक और सिंपल एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क जो यूज़ करते हैं, वो भी आपने देखा होगा कि नॉर्मली वो सिल्वर कलर में अवेलेबल होता है, राइट. वो लॉजिक भी हम इस रेडिएशन के साथ ही डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन ऑल्सो. तो अभी थोड़े आप और फैक्टर्स को डिस्कस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और थर्मस फ्लास्क की एग्जांपल आएगी, उसके बाद क्वेश्चंस में बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, सो दैट विल गिव यू आइडिया that how this dark color and bright color actually works. So the first factor is related to the colors, and as we already discussed that in winter collection we use dark colors.
And if we compare with summer collection, Sir, I have a question. How do dark colors emit light? basically, not light, radiation. Oh, okay. Yes. And when we are using heating grills for cooking and for different type of dishes, so those are also in dark colors because it will help you to provide thermal energy and transfer thermal energy and radiation very quickly as compared to any other color. And why and how these dark colors are become good absorber and why we are calling it good absorber. So the concept of good absorber means अच्छा गुड एब्जॉर्बर का आपको ऐसे पता चल जाएगा कि लेट्स सपोज इफ देयर इज अ बॉडी that is completely black or any dark color and the temperature of the body is 20 degrees Celsius, right? And let's suppose the temperature of the surrounding is 30 degrees Celsius, so there is a difference in temperature, so definitely वो जो डार्क कलर बॉडी होगी वो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी रेडिएशन और थर्मल एनर्जी को. So basically, bodies are called good absorber, and why they are acting like a good absorber. Reason is very simple. When their own temperature is lower than the surrounding. अच्छा कभी आपने ऐसा फील किया है कि अगर आपके पास एक बिल्कुल ब्लैक कलर का मग हो और उसमें कॉफ़ी या हॉट मिल्क या हॉट टी हो, तो वो काफ़ी देर तक जो है वो मतलब टेम्परेचर उसका हाई रहता है एज कम्पेयर टू वाइट मग. कभी Yes. ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? ठीक है, तो Yes, नॉर्मली sir. हाँ, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर एक एवरेज वेदर हो, मतलब ना ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई डार्क कलर्स यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी देर तक हमें ऐसे लगता है कि ये मतलब चाय या कॉफ़ी जो है वो ठंडी नहीं हो रही है, ये मतलब काफ़ी देर तक जो है वो गर्म ही है. तो वो डार्क कलर्स में हम ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस गुड एब्जॉर्बर. ठीक है, वो सराउंडिंग की हीट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रेजुअली. सो दैट्स वाई जो उसमें लिक्विड है उसका टेम्परेचर भी फॉर अ लॉन्ग टाइम हाई रहता है. और गुड एमिटर मीन्स अच्छा गुड एमिटर के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. लाइक इफ देयर इज a boiled water and you fill that boiled water in any container or in any mug, तो उसकी सराउंडिंग में आपको थोड़ा सा हीट फील होती रहती है. ठीक है, मतलब अगर आप उसके क्लोज खड़े हो और वाटर बॉईल हो रहा है, लाइक किचन की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो वहाँ पर आपके पास जो है वो टेम्परेचर आपको ऑटोमेटिक हाई फील होता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो सारा थर्मल का प्रोसेस चल रहा होता है आपकी सराउंडिंग में. सो बेसिकली जो वहाँ पर आप बर्नर यूज कर रहे हो, जो भी आपके पास सेटअप है वहाँ पे हीटिंग का, सो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ दैट बर्नर इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग, राइट? Sir, ये emitter का मतलब? हाँ, मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एमीटर की. जैसे आप बर्नर यूज कर रहे हो किचन में, जो स्टोव है आपके पास, तो जब आप उसे ऑन Okay. करते हो और कुछ टाइम बाद जब आप डेफिनेटली उसका टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग से हाई हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में इतना टेम्परेचर नहीं होता जितना उस बर्नर का होता है. तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो किचन में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई फील होना शुरू हो जाता है, राइट? उसके लिए फिर जो है वो एग्जॉस्ट फैंस और सिंक्स यूज किए जाते हैं ताकि उस हीट को बाहर मूव किया जा सके, वरना वो सब हीट जो है वो
इंटरनली आपके मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देगी। तो और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। और ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो अब उनके लिए हमारी बॉडीज जो है वो कोल्ड बॉडीज एक्ट कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडीज में अब डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है। सो इस वजह से वो हीट को अब जो सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रही है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एमिटर। राइट, एमिट मतलब बाहर की डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ठीक है। So a good emitter means when the temperature of the body so when the temperature of the body is greater than the surrounding. So this is the idea of the first factor that is linked with the color. Any question in it? Okay, No, so sir. okay. So the second factor is related to the texture, right? Now the second factor is about texture and what is the concept of the texture? So texture basically linked with, for example, if we are taking again the example of black color, right? So in black color, there is a matte black, there is a jet black, राइट, और शाइनी ब्लैक। सो इस तरह से हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज होती है। लाइक इफ यू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द फोन, राइट, सो अगर किसी फ़ोन पर जो है वो ग्लास प्रोटेक्टर इंस्टॉल्ड होता है तो वो एक शाइनी टाइप ब्लैक आपको फील देगा, राइट। और इफ़ यू आर यूजिंग अ पाउच, रबर पाउच, ब्लैक रबर पाउच ऑफ द फोन, तो वो थोड़ा सा रफ हो जाएगा, राइट। तो वो आपको थोड़ा मैट या रफ लुक देगा एज कम्पेयर टू दैट ग्लास बैक और द ग्लास सरफेस ऑफ द फोन। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। अब जो नॉर्मली हम डेली लाइफ में देखते हैं तो आप वो सिलिकॉन पाउच यूज़ कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा स्मूथ भी होते हैं। ठीक है। और उनमें मटेरियल इस तरह यूज़ किया जाता था ताकि वो आपके फ़ोन को भी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर से बचा सके एंड द टेम्परेचर ऑफ द फोन रिमेन्स कांस्टेंट एंड नॉर्मल। So the second factor is related to the surface texture. अच्छा, सरफेस टेक्सचर में कुछ ज्यादा नहीं करना आपने, बस आपने टेक्सचर को कलर के साथ लिंक करना है। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैट ब्लैक एंड शाइनी ब्लैक, राइट। तो जो मैट ब्लैक होगा ना वो रफ है। ठीक है। शाइन जहां पर आएगी तो शाइनी सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, राइट। बट इफ यू कंसिडर रफ सरफेस, लाइक इफ अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप रबर पर लाइट को स्ट्राइक करते हो और मिरर पर, तो कौन सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन देगा, रबर सरफेस या मिरर ग्लास सरफेस? Mirror glass surface. डेफिनेटली मिरर, राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट टेक्सचर पे अप्लाई होता है। इफ यू आर यूजिंग अ शाइनी ब्लैक कलर, so definitely that shiny black color is like a good absorber but not as good like that matte or a rough dull black color, right। तो जो बिल्कुल डल और रफ कलर होगा, ठीक है, सो वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन देगा और सबसे ज्यादा जो है वो आपको गुड एब्जॉर्प्शन का रेट देगा। ठीक है। बस ये हम टेक्सचर के पॉइंट्स लिख लें, फिर आप रिजॉइन कर लेना। ठीक है। सो फॉर टेक्सचर वी कैन से if we are talking about dull surfaces, dull surfaces are poor reflectors
Poor reflector means they are good absorbers. Of infrared radiations. And definitely if we talk about shiny surface, so shiny surfaces are good reflectors and good reflector means they are bad absorbers of infrared radiations. और इसकी एग्जांपल में थर्मस फ्लास्क आएगा। ठीक है, थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि उसे शाइनी इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें जो इंटरनल आप लिक्विड का हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हो, लेट सपोज अगर उसमें बॉइल वाटर है तो उसका इनर इनर सरफेस अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो उसमें भी ग्लास यूज किया जा रहा होता है, राइट। अगर आप एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का थर्मस फ्लास्क देखोगे तो उसका जो इनर सरफेस होता है तो उसमें भी ग्लास यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आप वाटर को फिल करोगे बॉइल्ड वाटर, सो वो बॉइल्ड वाटर में से जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रही होंगी वो ग्लास से रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मेन पर्पस ये है कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसे एब्जॉर्ब होने से बचाना है, क्योंकि अगर थर्मस की बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब किया तो वो बाहर एमिट कर देगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो वो हीट को जल्दी लूज करेंगे, राइट। तो वो रेडिएशन अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है मिरर की वजह से और वो इतना जल्दी बाहर नहीं आती, तभी उसमें जो है वो टेम्परेचर काफी टाइम तक मेंटेन रहता है। ठीक है, ये हम स्पेसिफिक पूरा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे थर्मस फ्लास्क का। ठीक है, अभी तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि अभी हम फैक्टर्स की बात करें तो ये एग्जांपल फैक्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। ये सरफेस of thermos flask are made shiny to prevent heat from going in or leaving out, क्योंकि उसका सरफेस शाइनी है तो बाहर की रेडिएशन बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अंदर की रेडिएशन अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो वहां पर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा हीट का, राइट। ना तो हीट बाहर जा रही है ना हीट अंदर आ रही है सराउंडिंग की, तो इसलिए आपके पास जो टेम्परेचर अंदर है वो काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है हम 100% कुछ एफिशिएंट बना सकते हैं, तो 100% एफिशिएंट तो हम उसे नहीं बना सकते, 99% भी अगर हम बना ले, ठीक है, तो 1% हीट उसमें से लूज कहीं ना कहीं हो जाती है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हो जाती है, क्योंकि आप उसे ओपन करते हो और डेफिनेटली जो कैप होता है कैप का मटेरियल उसमें रबर मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो थोड़ी बहुत हीट उसमें लूज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर वो 100% एफिशिएंट हो तो उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा जब तक आप उसे ओपन ही नहीं करोगे, राइट। बट
आपको पता है कि कोई भी मैकेनिज्म हमारी डेली लाइफ में ऐसा नहीं है, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो आपको बिना लॉस ऑफ एनर्जी 100% एफिशिएंसी दे, राइट।